Hello, good morning and welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to start the actual examples on the topic continuity. In previous video lecture we discussed the concept of continuity, the definition of continuity and some examples of continuous function. Okay, so what is the exact definition of continuity? If the limit of the function is equal to value of the function, जिस फंक्शन का लिमिट और वैल्यू सेम होता है वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। और लिमिट के दो टाइप है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। इफ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इफ ऑल दिस आर इक्वल देन वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, राइट। So after that we discuss some points which are what, some standard functions which are continuous. What are that? The constant function, the identity function, the power function, the absolute value function, that is we call the modulus function, the polynomial function, sine and cosine function, then exponential function. These functions are continuous everywhere for all the values of x because the domain is set of real numbers. The maximum possible values of x, that is the domain which is R. So these all functions are continuous everywhere. Okay, after that we discuss some rational function, tangent and secant function, cotangent and cosecant function and logarithmic function. So rational function means what? Numerator polynomial function है, denominator polynomial function है. Is it clear? So that is called as what? Rational function. These are continuous except all those values of x where denominator goes to 0. रैशनल फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है सिर्फ ऐसे वैल्यूज x के जिसकी वजह से डिनोमिनेटर 0 होता है, उस वैल्यू पे वो फंक्शन ब्रेक होता है, उसका ग्राफ ब्रेक होता है, जंप होता है. सो दैट इज द discontinuous function at those values of x where denominator goes to 0. And the next is tangent and secant. Tangent and secant, tan x and sec x are not defined when odd multiples of pi by 2. So odd multiples of pi by 2, 1 pi, pi by 2, 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, minus 3 pi by 2, minus 7 pi by 2, minus 5 pi by 2, where function not defined means obviously the function tan x and sec x are discontinuous at odd multiple of pi by 2. Okay, then cotangent and cosecant means cot x and cosec x are also discontinuous at integral multiple of pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, minus 1 pi, minus 2 pi, minus 3 pi, minus 4 pi, minus 5 pi. So where the function is not defined, so that's why this function cot x and cosec x are discontinuous at integral multiple of pi. Okay, and finally we discuss the last point where the function is a logarithmic function, and we know that logarithmic function is not defined for negative numbers and 0. So negative numbers पे function not defined है, so it means logarithmic function is discontinuous at negative numbers of x. Okay, so this is means only continuous at a positive real numbers, only continuous at positive real numbers. So this is the total theoretical part of continuity. Okay, so let's start the actual examples of continuity, topic number 8, exercise 8.1. so first example is examine the continuity of the following function. एग्जामाइन मीन्स व्हाट, हमें चेक करना है, डिस्कस करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है. ओके, सो द वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 2. सो फर्स्ट फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 for x is equal to 2. So we know that this is a polynomial function. ये कौन सा फंक्शन है? Polynomial function. So this is polynomial function. Polynomial function. And we know that, हमें पता है, we know that every polynomial function
is continuous. Every polynomial function is continuous for all values of x. For all values of x. So ये polynomial function है और theoretical part of polynomial function is what? Every polynomial function is continuous for all values of x. Therefore, for all values of x, therefore f of x is continuous. So आंसर क्या है हमारा? f of x क्या है? Continuous है. This is f of x. ये continuous है. Okay. So this is the answer of first example, which is very simple. Okay. Let's start the second example. Which one is second example? f of x is equal to sin x and cos x. X is less than or equal to pi by 4 and x is greater than pi by 4 at x is equal to pi by 4. So देखो example second में क्या, he has given two functions f of x is equal to sin x and cos x. So sin x की range क्या है? Means x is what, उसको क्या कहते हैं हम? डोमेन कहते हैं, which is एक less than or equal to pi by 4. So first of all write down the f of x. f of x is equal to sin x. x is less than or equal to pi by 4. Function is cos x for x is greater than pi by 4. And हमें चेक करना है at x is equal to pi by 4. So यहाँ पर इक्वल टू साइन है. So क्या करेंगे हम? गिवन f ऑफ पाई बाय 4 x इज इक्वल टू पाई बाय 4. साइन की x की जगह पर पाई बाय 4 रखो. साइन पाई बाय 4 इज 1/√2. इक्वेशन फर्स्ट. देन लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 माइनस. Why pi by 4 minus? Because here he has clearly mentioned x is less than pi by 4. अगर x is less than pi by 4 है तो always remember this line. अगर x is less than a है तो हमें x tends to a minus लिखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट. अगर x tends to x is greater than a है so x tends to a plus. अगर x is not equal to a है so x tends to only a. x tends to a. x is not equal to a means what? x tends to a. and अगर x is equal to a है so that is called as what? f of a. so ये लाइन जो है 4 लाइन. so this is very important for the topic continuity. okay, let's see here. हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है फंक्शन का. so लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन कौन सा? यहाँ पर sin x है, बिकॉज sin x के सामने x is less than pi by 4 है. so sin x. so x की जगह पर pi by 4 रखेंगे, sin pi by 4 which is 1/√2. अगेन x की जगह pi by 4 ही रखना है. दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स ओनली लेफ्ट हैंड लिमिट. इट इज नॉट माइनस pi by 4. pi by 4 minus pi by 4 minus is not equal to minus pi by 4. This is negative of pi by 4. This is pi by 4 minus. This minus sign indicates the left hand limit only. Okay, so now we can find the right hand limit. अब right hand limit क्या है? x tends to pi by 4 plus x is greater than pi by 4. so cos x is the function. limit x tends to pi by 4 plus function की जगह पर क्या लिखना है? cos x. and we know that cos pi by 4 is what? 1/√2. cos pi by 4 which is 1/√2. इक्वेशन सेकंड. देखो वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबकी वैल्यू क्या है? सेम है. सो ऑब्वियसली वी सेड दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस. यहाँ पर मैं उसका सॉल्यूशन लिखता हूँ. सो इसको 1 2 3 मैंने लिखा है. फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 यू शुड मेंशन देयर. सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3 1 is what? limit x tends to pi by 4 minus, this is the equation second, left hand limit is equal to limit x tends to pi by 4, this is right hand limit, and is equal to f of pi by 4, this is equation first. f of pi by 4 left hand limit right hand limit कौन सी भी सीक्वेंस से लिखो, all are equal. therefore this function, this is a स्टेप वाइज फंक्शन है. स्टेप वाइज फंक्शन मीन्स व्हाट? एक दो फंक्शन डिफाइन किए. हमने फंक्शन टॉपिक में देखा, इसको हम स्टेप वाइज फंक्शन कहेंगे. 2-3 फंक्शन अलग अलग डोमेन पे डिफाइन किए, सो इसको हम क्या कहते हैं? स्टेप वाइज फंक्शन. ओके, सो देयरफॉर f of x is
कंटिन्यूअस, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू π/4. So I hope you understand this solution. It's very simple and interesting and scoring. सो ये लेस दैन ग्रेटर दैन, लेस दैन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर दैन है तो राइट हैंड लिमिट, इक्वल टू है तो वैल्यू. अगर लेस दैन साइन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करना है, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड एक्स इज ग्रेटर दैन π/4 है तो राइट हैंड लिमिट फाइंड करना है, इक्वल टू साइन है तो वैल्यू फाइंड करना है. सो ये सब इक्वल है, सो ऑल दिस आर इक्वल, दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू π/4. ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर सेकंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. Immediately we will start the third example. So okay, after completion of first two example, let's start the third example. In third example he has given f of x. F of x is equal to x square minus 9 upon x minus 3. x is not equal to 3 is equal to 8 at x is equal to 3. सो हमें फाइंड करना है ये फंक्शन, डिस्कस करना है, एग्जामाइन करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3. सो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी का एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ये एग्जाम्पल स्टेप वाइज ये रैशनल फंक्शन है, x इज नॉट इक्वल टू 3 है, इट इज अ रैशनल फंक्शन. सो x इज नॉट इक्वल टू 3 मीन्स हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है. x इज इक्वल टू 3 मीन्स वैल्यू इज 8 विच इज गिवन. सो हमें सिर्फ लिमिट फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन, x की जगह पर 3 रखो, f ऑफ 3 गिवन वैल्यू इज 8, इट्स इक्वेशन फर्स्ट. Now limit x tends to 3, x tends to 3 लिखना है बिकॉज x is not equal to 3 f of x. हमें लिमिट फाइंड करना है. सो लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, सब पिछले टॉपिक में हमने देखा है. ऑल प्रोसीजर, ऑल द मेथड्स टू इवैल्यूएट द लिमिट ऑफ फंक्शन. और फंक्शन कौन सा है, अलजेब्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, लॉगरिथमिक है, आपको देखना है. सो देखो फर्स्ट इज व्हाट, फंक्शन इज x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाय x माइनस 3. सो हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. फॉर्मूला मेथड भी एप्लीकेबल है यहाँ पर. सो x स्क्वायर माइनस 9 के फैक्टर x माइनस 3 एंड x प्लस 3 डिवाइडेड बाय व्हाट, x माइनस 3. सो दिस x माइनस 3 कैंसल. ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड हम सॉल्व करें. So what is remaining factor here, x tends to 3, x plus 3. सो हमने x टेंड्स टू 3 ही क्यों लिया, बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 3. अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कोई संबंध नहीं है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट कब होता है, अगर x इज लेस दैन 3 है. राइट हैंड लिमिट कब होता है, अगर x इज ग्रेटर दैन 3 है. यहाँ पर नॉट इक्वल टू मीन्स एग्जैक्टली वी हैव टू फाइंड द लिमिट एट x टेंड्स टू 3. अब ये डायरेक्ट मेथड बिकॉज इट इज नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म था, इसलिए हमने फैक्टराइजेशन यूज किया. 3 प्लस 3 यहाँ पर 6 हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड. वैल्यू 8 है, लिमिट 6 आ गया, एब्सोल्युटली डिफरेंट है. इसको हम वैल्यू कहते हैं, इसको हम लिमिट कहते हैं. ये वैल्यू है, ये लिमिट है. x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू होती है, x इज नॉट इक्वल टू 3 पे लिमिट फंक्शन का फाइंड करना होता है. दैट आर एब्सोल्युटली डिफरेंट. सो यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिमिट x tends to 3 f of x is not equal to f of 3. लिमिट x tends to 3 f of x is not equal to f of 3. इसकी वैल्यू इसकी 6 है, लिमिट 6 है, वैल्यू 8 है. सो देयरफॉर f of x is डिसकंटिन्यूअस. फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट x is equal to 3. फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. पहले 2 एग्जाम्पल कंटिन्यूअस थे, अब ये एग्जाम्पल कैसे डिसकंटिन्यूअस है. व्हाई, वैल्यू गिवन है विच इज 8 और लिमिट कितना आ गया, 6 आ गया. सो वैल्यू वो तो गिवन थी, हमने लिमिट फाइंड किया, वो डिफरेंट आ गया, मीन्स ऑब्वियसली फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस. ओके, सो विल से द नेक्स्ट सेकंड एग्जाम्पल ऑफ सेम एक्सरसाइज 8.1.
Now let's start the second example of same exercise 8.1. 8 is the topic number, so that is continuity. 8.1 is the first exercise, and let's start the second example. Examine the continuity of the following function indicated at the given points. So these are the function piecewise defined function. इसको piecewise defined function कहते हैं, not stepwise. टुकड़े में डिफाइन किया है. ये पहला टुकड़ा है, सेकंड टुकड़ा है. So that's why it is called as the piecewise defined function. These are the indicated points. So इसकी रेंज, इसका डोमेन x is less than or equal to 2 है, इसका डोमेन x is greater than 2 है, और यहाँ पर हमें डिफाइन करना है at x is equal to 2. So less than greater than means we have to find the left hand limit and right hand limit. Okay. So पहले x is less than 2. Limit x tends to 2 minus f of x. Limit x tends to 2 minus फंक्शन कौन सा है, x क्यूब माइनस 2x प्लस 1. जहाँ लेस दैन है सो ये फंक्शन लेना है, ये नहीं. सो डायरेक्ट 2 रखेंगे. 2 क्यूब इज 8, 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 1. 9 minus 4 is 5. This is equation first, which is left hand limit. अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड लिमिट. x tends to 2 प्लस, यह x is greater than 2. ये फंक्शन लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर. लिमिट x tends to 2 प्लस, which is that function 3x minus 2. x की जगह पर 2, 3 into 2 is 6, 6 minus 2 is 4. इक्वेशन सेकंड. अब देखो लिमिट आ गया है 5, 8 प्लस 1 9, 9 माइनस 4 इज 5. लेफ्ट हैंड लिमिट 5, राइट हैंड लिमिट 4. सो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पर ही डिफरेंट आ गया है. बिकॉज डेफिनेशन व्हाट, सो उसमें से एक भी कंडीशन फेल से तो फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. सो ये फेल से लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट. सो नो नीड टू फाइंड द वैल्यू. बट वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पर वैल्यू x इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 2 भी है, x इज लेस देन 2 भी है. सो यही फंक्शन हमें लेना है. सो वैल्यू कितने आएंगी, 5 आएंगी. सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पर लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x. लेफ्ट हैंड लिमिट 5 है, राइट हैंड लिमिट 4 है, एब्सोल्युटली डिफरेंट है. देयरफॉर f of x is discontinuous at x is equal to 2. ये पॉइंट पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है. अगर इंडिविजुअली देखेंगे, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल, ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है. बट पीसवाइज डिफाइंड फंक्शन में ये दोनों साथ में कैसे है, डिसकंटिन्यूअस है. ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ दिस सेम. नाउ विल टेक द सेकंड एग्जांपल. देखो सेकंड एग्जांपल में फंक्शन क्या है, रैशनल फंक्शन है. यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 19 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1. value which is given, that is 20 for x is equal to 1. हमें चेक करना है at point x is equal to 1. So here जैसे लास्ट एग्जांपल में लेस देन था, ग्रेटर देन था, यहाँ पर नहीं है. यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये फाइंड नहीं करना है. यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट ही फाइंड करना है. लिमिट x इज नॉट इक्वल टू 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट गिवन, ये जो 20 है इस फंक्शन की वैल्यू है एट x इज इक्वल टू 1. x की जगह पर 1 रखेंगे. f ऑफ 1 इज इक्वल टू 20. इक्वेशन फर्स्ट. अब हमें इस फंक्शन का लिमिट फाइंड करना है, प्लेन लिमिट. प्लेन लिमिट मीन्स व्हाट, लेफ्ट हैंड भी नहीं है, राइट हैंड भी नहीं. इट्स अ सिंपल लिमिट बिकॉज x इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स ऑब्वियसली x टेंड्स टू 1. सो f ऑफ x which is equal to limit x tends to 1. function is this x square plus 18x plus minus 19 divided by x minus 1. अब इसका लिमिट फाइंड करना है. डेफिनेटली 0/0 फॉर्म में है, नो नीड टू चेक. अगर चेक भी करोगे तो 0/0 फॉर्म में भी डेफिनेटली आएगा. तो इस
इसका लिमिट फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, बिकॉज x टेंड्स टू 1 है तो हमें फैक्टर कौन सा कैंसिल करना है, x माइनस 1. सो लेट्स कैंसिल द फैक्टर x माइनस 1 बाय यूजिंग मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन. सो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर x प्लस 19 x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1. 19 into minus 1 is minus 19. 19 minus 1 is plus 18. So this factor cancel. So finally, limit x tends to 1, x plus 19. x की जगह पर 1 रखो, 1 plus 19 which is equal to 20, equation second. Value 20 है, limit 20 है from equation 1 and 2. यहाँ पर लिखो आप limit of the function इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. इसको वैल्यू कहते, इसको लिमिट कहते हैं. इक्वल है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, ए इंडिकेटेड पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर सेकंड ऑफ एग्जांपल नंबर सेकंड. ओके, सो वेरी सिंपल प्रोसीजर. पूरा टॉपिक में, पूरे कंटिन्यूटी टॉपिक में हम लिमिट फाइंड करने वाले. सो लिमिट का तो बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है. सो लिमिट फाइंड करने की प्रोसीजर सीख लो. कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या है ये स्टेप बाय स्टेप आप सीख लोगे. ये वैल्यू है, सिर्फ इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करना है. अगर इस फंक्शन की लिमिट 20 आ गई, वैल्यू 20 है तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस. अगर लिमिट अदर देन 20 आता तो डेफिनेटली इट इज व्हाट, डिसकंटिन्यूअस. इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस टू examine the function either continuous or discontinuous. Okay, let's finish the third example of same example number second. Okay, let's finish the third example of the second of exercise 8.1. So he has given function f of x is x upon tan 3x plus 2, x is less than 2. यहाँ पर less than 0 greater than 0 है. Less than 0 greater than 0, greater than or equal to 0 भी. Let's see the first check the correct example. So less than 0 means इस function का left hand limit find करना है. Equal to means this is the value. Greater than 0 means this is also right hand limit. अगर हमें check करना है सब equal है क्या. Okay. So we first of all mention the value. It's a given part. x की जगह पर 0, x is greater than or equal to भी है. So 0 यहाँ पर रखेंगे which is 7/3, equation first. Now इस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड लिमिट फर्स्ट फाइंड करेंगे. 0 माइनस, ये 0 माइनस 5 बिकॉज x is less than 0. So f of x which is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x क्या, ये x डिवाइडेड बाय tan 3x प्लस 2. अब लिमिट कैसे फाइंड करना, ये तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है. लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. x नीचे आ जाएगा 1 अपॉन tan 3x बाय x, ये प्लस 2 एज इट इज. अब लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन tan x बाय x होता है. यहाँ पे tan 3x है 1 अपॉन tan 3x बाय 3x ही होना जरूरी है, एंगल एडजस्टमेंट. सो 3 से मल्टीप्लाई करें, 1/3 से मल्टीप्लाई, 1/3 से डिवाइड, 1/3 से मल्टीप्लाइड, ये प्लस 2 एज इट इज. So this step is important. Here we adjust the angle. Angle is 3x, denominator is only x. 1/3 से डिवाइड किया, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, ये +2 कैरी करेंगे, +2 जो as it is. So this part is 1. Now so this is equal to 1 upon 1 into 1/3 plus 2. So 1/3 plus 2. 3 2s are 6, 6 plus 1, 7/3. Equation second. Equation second is the left hand limit. लेफ्ट हैंड साइड कैरी करेंगे. लेफ्ट हैंड लिमिट 7/3, वैल्यू 7/3. अब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे. लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस. 0 प्लस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज 0 प्लस, x इज ग्रेटर देन 0.
x टेंड्स टू 0 प्लस मीन्स व्हाट, x इज ग्रेटर देन 0. कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट, दैट इज 7/3. एंड वी नो वेरी वेल अबाउट दिस. 7/3 कांस्टेंट टर्म का लिमिट कांस्टेंट टर्म ही होता है एट x टेंड्स टू एनी. दिस इक्वेशन थर्ड. वैल्यू 7/3, left hand limit 7/3, right hand limit 7/3, mention here from 1 to 3, from equation 1, 2 and 3. So always mention the left hand limit first. कौन सा भी किया तो चलेगा, but it is a procedure. Right hand limit second and value third. Value f of 0, right hand limit x tends to 0 plus f of x, left hand limit x tends to 0 minus f of x. 7/3, 7/3, 7/3. So therefore f of x is continuous at the indicated point. At indicated point is what here, 0. X tends to 0. X is 0. At x is equal to 0. This is the indicated point. So this example, this function is continuous at the given indicated points. So ये function continuous क्यों आ गया? Because left hand limit is equal to right hand limit is equal to value. Okay. So दो डेफिनेशन है कंटिन्यूटी के. ये कहाँ पर कौन सी यूज करने, बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है. अगर ऐसा लेस देन ग्रेटर देन साइन है तो ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बनने वाला है. जहाँ पर नॉट इक्वल टू साइन है वहाँ पर सिर्फ लिमिट बनता है. ओके, so it is very simple to identify which definition is applicable for this example. Okay, so this is the enough study for this first today's video lecture of examples on continuity. 3 plus 3 6 example हुए. Okay, so we'll see more example on next video lecture. So stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. So today I will going to stop here. Thank you very much.